बेस्ट टीचर्स के गाइडेंस में पढ़ना इजियर होगा। एग्जाम या हो लाइफ, अब से हर स्टूडेंट विनर होगा। समझ आएगा तो मजा आएगा। Vedantu, learn live online. To attend a free live class, download the app now. Hey guys, hi, very good evening to all of you and welcome to the sessions. कैसे हो तुम लोग? How's life going on? So I'm pretty happy that yesterday you liked the session so much. Outstanding response. Thanks a lot for that. So yes, continuing that same journey, I am here in front of all of you with this next part. Sorry. So polynomials is our today's session and we will be starting with the polynomials and today is the polynomials chapter going on. तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मच फर्दर टाइम बिकॉज जितने इन्फॉर्मेशन देने थे आई हैड गिवन इन द प्रीवियस वीडियो यस्टरडे वाला वीडियो, तो उस वीडियो में मैंने मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं. एंड डू नॉट फॉरगेट दैट टुडे अगेन आई विल बी हैविंग वन मोर सेशंस विद यू गाइज. यू विल बी हैविंग वन मोर सेशंस विद मी which will be of pair of linear equation at 9 o'clock 9 p.m. okay, so do not forget to come. ठीक है, so let's start this session. This is the next week schedule. Fine, चलो शुरू करते हैं. तो इन पॉलिनोमियल्स वी विल बी पुटिंग अटेंशन ओवर ऑल दीज टॉपिक्स. ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इससे एक क्वेश्चन बनना श्योर है. एक क्वेश्चन आता ही आता है, वो ग्राफ के ऊपर होता है विच इज मोस्टली एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन. ठीक है, जहां पे यू हैव बीन आस्क्ड दैट कितने जगह पे पॉइंट कट किया, सो एट हाउ मेनी जीरोस विल बी हैविंग दिस ग्राफ और हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस आर देयर, समथिंग लाइक दैट. Okay, or what will be the value of A, B, C, kind of those things. Second, relationship between the zeros and the coefficient. I guess you know that alpha plus beta equals to minus B by A, alpha into beta C by A. Cubic polynomial alpha plus beta plus gamma minus B by A. Okay. And division algorithm of the polynomials. This is also very important. इसमें कई टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे say for example a cubic polynomial has been given to you and they have asked that find all the zeros. Or a biquadratic equation has been given to you and two of its zeros are given or one of its zero is given, isn't it? So these type of questions can be asked in this part. And let me tell you, most of the cases, in 90 to 95% cases, this is the segment where you will get 4 marker question, because all the questions in this segment is going to be surely 4 marker question only. Here you can expect a 3 marker, 2 marker. Here you should expect only a 1 marker, not more than that. Okay, so this is how it is going to work out in this chapter. ठीक है, तो शुरू करते हैं. Let's start. Here's the first question for all of you. First question is of the graph theory itself. Sorry. Graph theory, which of the following is not the graph of a quadratic polynomial? So quadratic means what? Quadratic means 2 zeros. So quadratic polynomial, and always remember that we have learned that quadratic is always a parabola. So looking like parabola, yes. Looking like parabola, yes. So parabola is a kind of mixture of u and v, isn't it? Looking like parabola, yes. Surely not looking like a parabola, isn't it? And apart from that, this is also evident because this graph is having 1, 2 and 3 zeros. So a quadratic polynomial surely cannot have 3 zeros. It will have 2 zeros only. So D is the right option. Fine. So this is the right answer. 1 marker question very easily. So moving on, D is the right answer. So information for all of you, I guess I have already given it for the micro course. In case if you want to purchase it, any single specific chapter, this is the link and this is the code. Use it, you will get it in this much low price. Chalo, moving on to the next. This is the next question. Question says, if a polynomial, this is exactly divisible by this, find the value of k. Okay, so everyone please pay attention. Question is saying that we have a polynomial. Now see, many of the students might be thinking कि सर ये एक क्वेश्चन डिवीजन पॉलिनोमियल का है, डिवीजन एल्गोरिथम का है. In fact, I would say okay, you're not wrong. डिवीजन एल्गोरिथम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. सो व्हाट यू विल डू, यू विल डिवाइड इट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और यहाँ पे वो बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखोगे, दिस इक्वेशन, and whatever the remainder you will be having, you will be just making this remainder equal to 0 because it is exactly divisible and hence you will get the value of k. But this is a method which everyone will do and it is going to take a very long time. Now say for example, if this question appears for 2 marks, what you will do? Still you will have to go with this method. Unnecessarily wastage of time. Or even if this question comes for 3 marks, still if we have a easier method, why to go with this method? And what is that easier method? वो easy वाला method कौन सा है देख लो. वो easy वाला method बहुत प्यारा है, समझो. वो easy वाला method ये है कि क्यों ना हम इसी के zeros निकाल लें
इसके जीरोस बहुत आसानी से दिख रहे हैं मेरे को। देखो अगर इसके जीरो नहीं निकल रहे होते तब तो पक्की बात है डिवीजन से जाना ही पड़ता, लेकिन अगर इसके जीरोस निकल रहे हैं तो क्यों ना निकालें। तो वेरी इजली आई गेस तुम सब समझ रहे होगे, यू ऑल विल बी अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज फैक्टराइज्ड इन दिस फॉर्मेट। सो इफ इट इज factorizable, here you will get the 0 2 and here you will get the 0 1. Now the question is saying that this polynomial is exactly divisible by this. Means what? The 0 of this polynomial is also the 0 of this polynomial. Means इसका 0 जो होगा वो इसका तो होगा ही होगा, तभी तो exactly divisible है। Means x equals to 1 is a 0 of this polynomial. तो 0 होता है तो क्या होता है, फैक्टर थ्योरम लगाते हैं, रिमाइंडर 0 होता है, isn't it? लगा दो जल्दी से। तो 1 की वैल्यू डालो, तो 1 raised to power 4 minus 3 into 1 cube minus 6x square, तो 6 into 1 square plus k into 1 minus 16 sorry minus 16 should be equal to 0। ये सब 0 के इक्वल होना चाहिए। सॉल्व करो जल्दी से, 1 and 1 गयो, -6 and -16 उधर भेज दो, k की वैल्यू आ गई 22। इससे ज्यादा इजी कुछ हो सकता था बताओ, k equals to 22। So you will have to apply this थोड़ा सा डिफरेंट वाला ब्रेन and you will get the answer। ठीक है, if you all got it तो let's move on। next question solution देख लो इसका, k equals to 24, ऐसा कैसे? अच्छा सॉरी यार, सॉरी मैं भूल गया, मैंने वहां पे इन दोनों को कैंसिल कर दिया था। आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे 3 मैंने ध्यान नहीं दिया बिकॉज 3x³ इज देयर। आई एम वेरी सॉरी। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, तो -2 आई गेस वो कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। मैं बस मेरे को आई हैड टू टेल यू द मेथड, तरीका बता दिया। फाइनल वैल्यू तो तुम ले आओगे, इतना भरोसा मुझे है, मैंने पूरे साल पढ़ाया तुम लोगों को, तो आई नो दैट यू विल गेट द फाइनल वैल्यू एंड k equals to 24। फाइन, समझ गए, आगे बढ़े चलो। Next question, show that this and this are the zeros of this polynomial and verify the relationship between zeros and coefficients of the polynomial. So first of all, if we have to show that any zero is the zero of any particular polynomial, क्या करेंगे? Simple, इसको यहाँ put कर देंगे, put कर दो। तो if you put it here, 4 into x के जगह पे 1/2 का स्क्वायर डाल दो, प्लस 4 into 1/2 minus 3, वैल्यू सॉल्व कर दो, 1/4 into 1/4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, -3, तो दिस इज ऑल्सो कैंसिल, 1 + 2 3 - 3, वैल्यू इज 0। So if value is 0, we will write that here after putting this 0, we are getting the value of polynomial equals to 0, hence it is a 0. Pakka? Now similarly you will do for this one also. Exactly same method. Now ये दोनों हो जाने के बाद how will you verify the relation? Relationship कैसे करोगे तो वो भी मैं बता चुका हूँ। How? You will assume alpha is equals to 1/2, beta equals to -3/2। ठीक है, दोनों लिख दिया। Now we will write a b c value, a is 4, b is 4 and c is -3, coefficient a b c along with their signs. Now we know first relation for verification that alpha plus beta equals to -b/a, isn't it? तो alpha plus beta की वैल्यू निकाल लो, तो alpha plus beta very easily 1/2 -3/2, isn't it? तो if you will solve you will get it -1. Similarly -b/a निकाल लो, तो -b/a minus b की वैल्यू 4, a की वैल्यू 4, here also you are getting -1, तो you will write LHS is equals to RHS, hence proved first relation। and exactly same method second relation भी डाल दो, alpha into beta equals to c/a। कर लो क्या, ये मैं करके नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन I hope you will be able to do this। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू डाल देना। हाँ, कुछ बच्चे यहां पे गलती क्या करते हैं, दे राइट दिस वैल्यू हियर इक्वल्स टू दिस वैल्यू हियर एंड दे साइमल्टेनियसली डू इट। वो एक्चुअली एक रॉन्ग मेथड है। आपको प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल आ रहा है और आप शुरुआत से उसको इक्वल दिखाते हुए जाओगे तो आंसर नहीं, मतलब मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेथडोलॉजी रॉन्ग है। जरूर तुम्हारा आइडिया सही है, तुम्हारा मतलब आंसर भी सही होगा, बट मेथडोलॉजी रॉन्ग है। ओके, तो व्हाट यू शुड डू, पहले LHS निकाल लो like this, फिर RHS निकालो, then at the end you write LHS is equals to RHS, correct method। okay, चलो if you all got it तो let me show you the solution also। this is the solution इसका पूरा, ठीक है। तो like this you can do, fine। तो verification भी हो गया, product of zeros and sum of the zeros। ये भी एक तरीका है कि -1 लिखने के बाद इसको इसके इक्वल दिखा दिया, that is also fine, whatever you feel easy। ठीक है, चलो, so the whole solution is there। ये क्या है, ये तो लगता है
ओके सॉरी, हाँ दिस वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा आगे हो गया था. So this is the next question. It says obtain all the zeros of the polynomial this if two of its zeros are plus 5 and minus 2. Now let me tell you, this is the question which I was talking about. ये 4 marker है, पक्की बात. दूसरा क्या कि this question is from division algorithm, and तीसरा क्या that this is an HOTS question and has a very high probability of appearing in your examination. So please do not forget to leave this question. मैं तरीका बता देता हूँ. Simple है. If your zeros are given 5 and minus 2, you will write it here. X equals to 5 and x equals to minus 2. Zeros hai. Now whatever is your zero, send it to this side. You'll get the factor. This implies factor is x minus 5 and here x plus 2. तो ये आपके factor हो गए और ये आपके zeros हो गए. I'm just writing it rough. You'll write it like this. या तुम यहाँ पे लिख लेना zeros ये हो गए और फिर यहाँ पे next line factors बना के. Now if you have got two factors x minus 5 and x plus 2, what you are going to write? Final factor. तो you'll write factor जो होगा वो final x minus 5 into x plus 2. Multiply it, तो you'll get x square minus 3x plus 10. ठीक है? इसको multiply करोगे तो you'll get this. Now since these two are the zeros and these two are the factors, तो ये जो multiply किया हो ये भी इसका factor होना चाहिए. तो अगर ये इसका फैक्टर होना चाहिए मीन्स व्हाट, इट शुड एग्जैक्टली डिवाइडेड, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाना चाहिए. तो यू विल डिवाइड इट नाउ. एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 एंड हियर यू विल डू x4 माइनस 17x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 20. फाइन. सो अगेन मेथडोलॉजी विल बी सेम आई गेस. ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ये एक्स स्क्वायर है तो x4 है, तो यहाँ पे यू टेक द फर्स्ट टर्म एज एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया x4 माइनस 3x क्यूब. यार मैं डायरेक्ट कर दूं क्या या तुम लोग को दिखाऊं पूरा कि कैसे कैसे हुआ है? नहीं वो दिखा सकता हूं लेकिन चलो कर देते हैं, टाइम थोड़ा सा लगेगा. तो x4 हो गया, माइनस आ गया, हाँ ठीक है, माइनस प्लस माइनस कैंसिल. नाउ -17 एंड -10 विल गो टुगेदर. क्यों? क्योंकि स्क्वायर वाला बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो इसको इससे गया -16 प्लस 3 -17 प्लस 3 -14 दे राइट इट, बट दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच. मतलब अप्रोच क्या बोला, पूरा रॉन्ग ही है. क्यों? क्योंकि क्यूब और स्क्वायर तो ऐड हो ही नहीं सकते, इजंट इट? तो डोंट डू दैट मिस्टेक. दिस प्लस 3x क्यूब विल कम हियर एज इट इज. -17 -10 will become -27x square and then -36x and then -20. ये ऐसे होने वाला है. ठीक है. फिर you will take -3x क्यूब के लिए इसमें 3x मल्टीप्लाई करना होगा, तो you will write it here plus 3x से मल्टीप्लाई करोगे you will get something, और फिर लास्ट जो टर्म आपके आने वाला है वो होगा it will be -2. This is what you are going to get in the last. ठीक है. So x square plus 3x -2 will be your factor. ये आपका लास्ट फैक्टर होगा. ये एक बार फैक्टर आपका आ गया. Now what you are going to do, you are going to factorize this one. ये जो quotient आपका आया. Now if you will get this quotient factorized, you will get the remaining two zeros. पक्का है? समझ में आ रहा है अच्छे से? कोई दर्द, कोई परेशानी, दिक्कत तो नहीं आ रही? देखो I'll show you the solution also. फैक्टराइजेशन करने के बाद तो x square plus 2 था. Wait a second. Sorry, so I had put the wrong sign there. It was plus 2, not -2 by mistake. So x square plus 3x we have got, plus 2 will be there, and you should only factorize this one. ये जो आखिरी में जो बचा है, because ये तो already we had this x square minus 3x minus 10. तो x square minus 3x minus 10 हमारे पास है. We'll just multiply, मतलब divide this one. इसको factorize करेंगे तो इसको factorize करके क्या आंसर आने वाला देख लो. सिंपल सा factorization है. It will be x plus 1 into x plus 2. If you factorize it, you will get this. और यहाँ से 0 मिल जाने हैं. The 0 will be here -1 and the 0 will be here -2. समझ में आ रहा है? Are you all getting it? Isn't it? तो सिंपल है यार, ज़्यादा टफ नहीं है and you will be able to get it. बहुत टफ नहीं है. इनफैक्ट ये चैप्टर ईजी है. बड़े आराम से इस चैप्टर में सारे मार्क्स स्कोर हो सकते हैं. बिलीव मी. ठीक है. देखो फाइनल सोल्यूशन. तो ये डिवीजन यहाँ दिखा दिया है. x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और ये हमारा डिवाइजर है जो कि x प्लस 5 इंटू x माइनस 2 से बना है. तो एवरीथिंग इज रिटन हियर एंड हेंस यू गेट द फाइनल -2 एंड -1. ठीक है. कूल. फाइन.
ओके, सो इफ यू ऑल गॉट इट तो लेट्स मूव ऑन. ओके, नहीं अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, क्लास खत्म नहीं हुई है अभी और भी चीज़ें. तो डाउट अगर पूछना है तो वेदांतु ऐप डाउनलोड कर लो, यहाँ पे डाउट मिल जाएंगे तुम लोगों को. यू कैन जस्ट क्लिक द पिक्चर एंड पोस्ट इट इन द ऐप, यू विल गेट द डाउट सपोर्ट. ओके, चलो मूविंग ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है समझ लो. ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ अ पॉलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल दिस, द रिमाइंडर कम्स टू बी px plus q. फाइंड द वैल्यू ऑफ p and q. नाउ लेट मी टेल यू, यहां पे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी, सो यू विल हैव टू डिवाइड इट कंप्लीटली, each step by step. No short trick will be applicable here. And apart from that, here you'll have to find the remainder at the end और उसके बाद उसको equate करना है px plus q से. तो कैसे होगा ये पूरा सॉल्व करते हैं. चलो देखते हैं. तो everyone pay attention. आपके पास है x square minus 4 which is dividing. Excuse me. प्लस 14. ठीक है. सो लेट्स सी. सो फर्स्ट टर्म तो 3x4 है, तो यहां पे वील राइट इट 3x स्क्वायर. ओके, 3x स्क्वायर यहां से 3x4. नाउ दिस 3x स्क्वायर विल मल्टीप्लाई विथ -4, इट विल बिकम -12x स्क्वायर एंड आई विल राइट इट बिलो x स्क्वायर टर्म. माइनस प्लस कटा. This will come as it is, -4x cube. And here I have -16 and plus 12x square, so it will give me -4x square and plus 15x and plus 14. Understood? Again, first term 4x cube, यहाँ x square, so we will write -4x. -4x लिखने के बाद we will write here -4x cube. देखो, -4x cube. -4x into -4, so it will give me plus 16x square and plus 16x ये मिलेगा मेरे को, because it is -4x into -4. तो I'll write it here x के नीचे, changing the sign, so it will become plus, it will become minus, cancel, -4x square will come as it is, 15x minus x, 15x minus x, it will be minus x and then plus 14. Fine. Again x square. Again first term -4x square and x square. So I'll write here -4. ठीक है. तो here we'll get -4x square. -4 into -4 will be plus 16. तो ये हो गया plus 16. Changing the sign. So this minus will become plus and this will become minus. Cancel. This minus x will come as it is and 14 minus 16 will be -2. Fine. Got it? समझ में आ गया? Okay. So this is what we have got as the remainder. Remainder is -x minus 2, but this remainder should have been equal to px plus q. So this means it clearly shows that q has a value -2 and p has a value -1. तो यहां से coefficient equalization, we call it coefficient equalization. Coefficient को equalize करोगे and once you do the coefficient को equal, तो you will get p equals to -1 और q की value -2 मिल जाएगी. समझ गए? p की वैल्यू -1 और q की वैल्यू -2. ठीक है. चलो लेट्स मूव ऑन. इफ यू ऑल हैव गॉट इट, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था. वी हैव गॉट द आंसर. p की वैल्यू -1 एंड q की वैल्यू -2. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट. ठीक है. और ये पूरा 4 मार्कर है, तो यू विल गेट दैट इन 4 मार्क्स. चलो मूविंग ऑन. सो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, बता दूं पहले से. टेलीग्राम ग्रुप you can join for all the updates about 9th and 10th. ठीक है. तो ग्रुप नेम इज vdnt.in/9 and 10. You can just use this link for getting joined to the Telegram group. Next question क्या कहता है देखो जल्दी से. Question says if alpha and beta are the zeros of the polynomial this, satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha beta equals to 21/4. Find the value of k. अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर का, बिल्कुल 3 नंबर का, 3 नंबर में आएगा भी है, पक्की बात है. देखो क्या क्या आएगा. I guess you all know one thing. पहली चीज जो तुम जानते हो, alpha plus beta equals to -b/a. तो -b/a यहां से b की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, तो आई राइट इट हियर -5/2. अच्छी बात. अल्फा इंटू बीटा यू नो इट इज c/a. तो c की वैल्यू k, a की वैल्यू 2, सो इट इज k/2. फाइन. ओके. नाउ वी हैव बीन गिवन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4. अच्छी बात है. लेकिन ये बताओ कि ये किसी का फॉर्मूला तो नहीं है, पक्की बात है. दिस इज नॉट अ फॉर्मूला. सो कैन वी मेक इट अ फॉर्मूला? मुमकिन है.
आई विल से यस. हाउ इज इट मुमकिन? आई टेल यू कि ये तो 21/4 है. ओके रहने दो. कैन आई डू वन थिंग? कैन आई मेक इट 2 अल्फा बीटा एंड माइनस अल्फा बीटा? देखो 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा भी आजकल मोदी गवर्नमेंट में अल्फा बीटा ही होता है. ठीक है, तो डू नॉट गेट वरीड. ये मैंने सही लिखा है. लिखा क्यों है ये मुद्दा होता है. अब लिखा इसलिए है बिकॉज ये फॉर्मूला बन गया मेरा. दिस इज अ फॉर्मूला फॉर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड माइनस अल्फा बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर फॉर्मूला हमारे मतलब वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है -5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है k/2 एंड शुड बी इक्वल टू 21/4. अब अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पे आ गया 25/4 माइनस k/2 21/4. उसको इधर इसको इधर ब्ला 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 करके सॉल्व करोगे तो ये हियर यू विल गेट 25/4. ये वाली चीज इधर आई तो -21/4 इक्वल्स टू k/2. अब बस तुम्हें सॉल्व करना है. तो यहाँ पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4/4 1 आ गया, k की वैल्यू 2 आ गई. ये तो कर ही सकते हो. और देखो कितने मजे से तुम्हें 3 नंबर मिल भी जाएंगे. Isn't it? So you'll get 3 marks. So easy solution. Fine. I guess you all are understanding. सबको समझ में तो आ ही रहा है. Isn't it? अब तो तुम लोग तेज हो गए हो. Isn't? कि मतलब पूरे साल पढ़ाया हूँ और पूरे साल तुम लोग पढ़े भी हो पूरे तत्परता से. तो आई एम प्रेटी श्योर कि हाँ तुम लोग अब तेज हो गए हो. ठीक है, चलो मूविंग ऑन. तो k की वैल्यू वी गॉट 2. So here is the next for all of you. It says on dividing this by a polynomial gx, the quotient and remainder. अब देखो ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है. Absolutely 4 marker. Extremely good question and very high probability of appearing in your examination. इस साल आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तो छोड़ना नहीं. और समझ लो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है. इतना इजी है लेकिन इतना घुमाने वाला इसका स्टेटमेंट है कि कई बार बच्चे इसमें काफी कंफ्यूज होते हैं. बट दिस इज एन इजी क्वेश्चन. देखो कैसे करेंगे. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, मार्क्स इज नॉट 3 इट्स 4. ठीक है, चलो देखते हैं. ऑन डिवाइडिंग दिस, तो जिसे हम डिवाइड करते हैं वी कॉल इट एज डिविडेंड. डिविडेंड इजंट इट? ये डिविडेंड हो गया. बाई अ पॉलिनोमियल, जिससे डिवाइड करते हैं वी कॉल इट एज अ डिवाइजर. डिवाइजर. ओके. द कोशेंट एंड रिमाइंडर वेयर, तो दिस इज माई कोशेंट, दिस इज माई रिमाइंडर. फाइन. फाइंड द वैल्यू ऑफ gx. ओके, तो आई गेस यू नो द रिलेशन हम लोग जो बचपन से पढ़ते आए हैं वो रिलेशन हमारा ये रहा है कि वी नो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. फाइन. तो लेट मी अज्यूम कि ये जो डिविडेंड है इसको मैं fx मान लेता हूं. थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं fx. तो डिविडेंड मतलब मींस fx equals to divisor is given gx into quotient we have assumed qx, q या qx जो भी लिखना है वो लिख लो, प्लस रिमाइंडर r और rx whatever you want. सब x में है तो xx ले लेते हैं. we got this. now what has been asked in the question में किसकी वैल्यू पूछी गई है? gx की. तो यहां इस इक्वेशन में gx तुम निकाल सकते हो क्या? इसको आगे पीछे करके निकाल सकते हो आई गेस. rx को सबसे पहले उधर भेजेंगे. तो इफ वील सेंड rx टू दैट साइड व्हाट विल हैपन. देखो rx को अगर उधर से इधर लाया तो वी विल हैव fx माइनस rx इक्वल्स टू gx इंटू qx. ठीक है, और हमें gx की वैल्यू चाहिए तो qx को भी इधर भेजो. तो अगर इधर भेजा तो इसको डिवाइड कर देंगे qx, इधर से qx हटा दो. गेटिंग इट? तो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ gx. अब ये gx की वैल्यू वैसे हमसे ऐसे नहीं पूछी गई थी बट लेकिन पता तो चल गया कि gx निकलेगा कैसे. तो gx निकलेगा कैसे? fx जो हमारा डिविडेंड है इसमें सबसे पहले माइनस करना है रिमाइंडर. तो माइनस कर दो, लगे हाथ कर ही दो. क्यों इतना दूर मतलब इसको लंबा लटकाओगे. तो डिविडेंड में रिमाइंडर माइनस किया मींस ये माइनस होने वाला है, ये प्लस होने वाला है. तो 16x माइनस करो. 5 माइनस 16 आई गेस यू आर गेटिंग -11x. बाकी के टर्म्स तो लिख ही लो. 3x स्क्वायर, 3x क्यूब होना चाहिए, सॉरी ये मिसप्रिंट है. 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, 5 माइनस 16 माइनस 11x एंड -13 प्लस 43. -13 प्लस 43 क्या होगा? +30. तो ये हो गया हमारे पास fx माइनस rx. दिस इज fx माइनस rx एंड दिस fx माइनस rx
शुड बी डिवाइडेड बाई QX। QX हमारा क्या है, क्या QX कहां गया, हाँ ये था क्वोशंट 3x + 10। अब इसको हमें 3x + 10 से डिवाइड करना है। नहीं कर पाओगे, सिंपल नहीं है यार, बहुत इजी है। मतलब अब तो बता ही दो कि हाँ इजी है, इससे ज्यादा इजी क्या हो सकता था, बताओ तुम ही लोग। एंड बिलीव मी, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, और सिर्फ 4 नंबर का नहीं, ये 200% आ ही रहा है पेपर में, तो एकदम इसको रट के जाना। हो सकता है वैल्यूज चेंज हो, बट टाइप ऑफ द क्वेश्चन विल रिमेन एज इट इज। ठीक है, तो ये हमारा न्यू डिविडेंड है जिसको कि डिवाइड करना है 3x + 10 से, एंड हेंस वॉट एवर विल द आंसर कम, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी योर gx। आपको यही gx निकालना है। ठीक है, इन केस इफ यू वांट टू टेक ए स्नैपशॉट ऑफ दिस, स्नैपशॉट ले लो, नहीं तो वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके लिख लेना कॉपी में। ठीक है, अब तुम इसको डिवाइड तो आराम से कर लोगे, उसमें तो कोई फाइट ही नहीं है। तो इसको gx को मैं साइड में मैं डिवाइड कर दूं या तुम्हें दिखा दूं डिवाइड करके, देखो gx देखो 3x² + 4x 3x क्यूब है, सॉरी 3x क्यूब + 4x² - 11x + 30 - 11x + 30 डिवाइडेड बाई 3x + 10 3x + 10। ठीक है, सेम चीज हम लोगों को भी मिली है gx, एंड अब इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड यू विल बी एबल टू डू इट। देखो डिवाइड करोगे यू विल गेट द gx, जो क्वोशंट मिला आपका x² - 2x + 3, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ gx। सिंपल। ठीक है, और ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बिलीव मी। ओके, तो इसको छोड़ के बिल्कुल मत जाना, एंड ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलो तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। ओके, सो दैट वाज ऑल, 7 क्वेश्चंस डन। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट एंड राइट इट डाउन समवेयर, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप होमवर्क जरूर करें। होमवर्क इसलिए नहीं करें कि होमवर्क करना चाहिए, बच्चे का धर्म है, ऐसा नहीं है। होमवर्क इसलिए करो क्योंकि जितने होमवर्क क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सेशन में लेना हर क्वेश्चन मुमकिन नहीं है। तो जो क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि तुम लोग कर पाओगे खुद से, एंड इट इज इंपॉर्टेंट, सो दैट व्हाट आई एम शोइंग इन द होमवर्क। सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू डू द होमवर्क पार्ट। ठीक है, तो होमवर्क इज इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफएक्स इज नेगेटिव ऑफ द अदर। मैं तरीका बता देता हूं, थोड़ा सा हिंट जरूर दे दूंगा कि अगर एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, मींस इफ आई हैव अ जीरो अल्फा तो अनदर जीरो इज -α। ओके, देन फाइंड द जीरो ऑफ दिस पार्ट। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी ऐसा नेगेटिव वाला पार्ट आए, नेगेटिव ऑफ अदर, ऑलवेज रिमेंबर इफ यू आर गोइंग टू डू द सम ऑफ द जीरो, तो सम ऑफ द जीरो ऑब्वियसली क्या आने वाला है, जीरो। इजंट इट, अल्फा माइनस अल्फा जीरो हो जाएगा। और ये जीरो होने से अफेक्ट कहां पड़ेगा, बिकॉज वी नो सम ऑफ द जीरोज इज -b/a, इजंट इट। मतलब साफ साफ दिख रहा है मेरे को कि b की वैल्यू जीरो होने वाली है। b मीन्स व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट देखो भाई, यहां पे -8k एंड +8 दोनों ही x के कोएफिशिएंट है ना, तो यू विल डू हियर -8k + 8 का को इक्वल टू 0 करोगे, यू विल डू इट 0, यहां से k की वैल्यू मिलेगी, यू विल पुट दैट k का वैल्यू हियर एंड देन यू विल फाइंड द 0, या जो भी निकालने बोला है। ठीक है, समझ गए ये बात। तो ऐसे क्वेश्चंस लिंक करके आएंगे, पक्की बात आएंगे। ठीक है, तो इनको छोड़ना बिल्कुल नहीं। इसका दूसरा एक टाइप है कि वन ऑफ द जीरो इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ऐसा भी एक क्वेश्चन आता है, जैसे यहां पे तो नेगेटिव आ गया तो ये आपने कर दिया, अगर रेसिप्रोकल ऑफ द अदर आएगा तो क्या करोगे, यू विल डू 1 0 एज अल्फा, अनदर 0 एज 1/α। और फिर इस केस में सम करना कोई फायदेमंद वाली बात नहीं है, इट इज नॉट फ्रूटफुल। व्हाट इज फ्रूटफुल, मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज इफ यू विल डू मल्टीप्लीकेशन, अल्फा अल्फा गॉन। तो हियर यू विल डू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस विच इज इक्वल टू c/a, और वहां पे देखना c में कुछ फिट हो रहा होगा जिससे कुछ वैल्यू निकल कर आ रही होगी। तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन, एंड यस दैट वाज ऑल। सो राइट नाउ यू आर हैविंग दिस सेशन। अभी पॉलिनोमियल्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, कल रियल नंबर तुम लोगों ने देखा था। अभी नेक्स्ट सेशन जो होने वाला है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो अगेन इसको भूलना नहीं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं। ठीक है, चलो तो आई विल सी यू गाइस अगेन एट 9 o'clock। टिल देन थोड़ा सा आराम कर लो, मैगी खा लो, मस्ती कर लो। ओके, एंड सी यू एट 9 o'clock। ओके, बाय बाय।